As per section 43 of CRPC, even a private person can make arrest or cause anyone to be arrested. So this provides that even if anybody is not even a police officer or is not especially empowered to arrest anyone, even as per section 43, even after that, section 43 of CRPC gives such power to any person, any private person, that he can make arrest of any person, or he may cause any person to be arrested. So, but there are certain circumstances in which the arrest must be made. And what circumstances are that? It is provided under section 43. So it provides that any private person may arrest or cause to be arrested any person who is in presence commits a non-bailable and cognizable offense. So a private person can arrest any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense. So if offense is only non-bailable and not cognizable, then he cannot make arrest. The condition is that the offense must be non-bailable and at the same time cognizable. So if offense is bailable and at the same time cognizable, then arrest cannot be made. The condition is that both the conditions must be there together at the same time, that he must be committing an offense which is non-bailable and cognizable. Or if any person whom he is arresting is a proclaimed offender, if anyone is proclaimed offender, then in such situation arrest can also be made by a private person. Further, it provides, and without unnecessary delay, that person who is making arrest of that person shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer. So that person who is arresting anyone, he must take him to the police officer. Or अगर कोई police officer नहीं है, there is no police officer, then he must be taken in the custody of nearest police station. Now, second clause provides that, subsection 2 provides that if there is a reason to believe that such person comes under the provisions of 41, then police officer shall re-arrest him. So these are the conditions under which a private person can arrest any other person who is committing in his presence such offense. The conditions are those. So key points are that arrest by a private person, by either he himself can arrest, or cause by another. The arrest can be made by any other person in his direction, or with the help of other, or by even any group of people. So वो खुद भी अरेस्ट कॉज कर सकते हैं, किसी से कॉज करा सकता है. सेकेंडली, दैट अरेस्ट ओनली ऑफ अ पर्सन हु कमिट्स a non-bailable and cognizable offense, or that the person whom he is arresting is a proclaimed offender. So there is or here and it is and here. So there are two conditions कि या तो वो जो offender है जिसको arrest किया जा रहा है वो proclaimed offender है, या फिर वो उसने उसके presence में non-bailable या cognizable offense commit किया है. There are two things here, and after that, which is very important, that जो arrest कर रहा है उसकी presence में offense commit होना चाहिए. जो अरेस्ट कर रहा है, अगर उसने सुना है कि कहीं पे ऑफेंस कमिट हुआ है और वो जाके अरेस्ट करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता. अरेस्ट करने के लिए एज पर 43 प्राइवेट पर्सन तभी अरेस्ट कर सकता है जब उसकी प्रेजेंस में ऑफेंस कमिट हुआ है. एंड ही मस्ट बी, देयर इज अ शैल, ही शैल बी टेकन टू द पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी अननेसेसरी डिले. एंड देन द प्रोसीजर इज दैट जब पुलिस ऑफिसर के पास वो लेके जाता है तो पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम इफ द केस फॉल्स अंडर विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 41 ऑफ CRPC, विच प्रोवाइड्स कि कब पुलिस ऑफिसर एक विदाउट द ऑर्डर वारंट इशूड बाय द कोर्ट, बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी मैटर को. सो ये पावर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में दी गई है. तो 41 प्रोवाइड करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में कब पुलिस ऑफिसर कैसे किन लोगों को एज पर 41 अरेस्ट किया जा सकता है. सो व्हेन दैट पर्सन इज टेकन टू द पुलिस, then police shall ascertain that whether this case falls within section 41 of CRPC, क्या उन conditions में आ रहा है, whether the information is credible that he has committed such and such offense. So उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है. और यहाँ पर री अरेस्ट प्रोविज़न, ये वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि अरेस्ट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही वो अरेस्ट माना जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा. तो दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर कि वहाँ पे री अरेस्ट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा. Now what if you arrest anyone and does not take him to police officer? अगर आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस के पास लेके ही नहीं जाते हैं, तो ये एक अपने आप में ऑफेंस है which is defined under section 340 of IPC and punished under 342, which is wrongful confinement.
क्योंकि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद पुलिस के पास नहीं ले जा रहे हैं, ये अपने आप में एक ऑफेंस हो जाता है. सो दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट आप अरेस्ट करके किसी को अपने पास अननेसेसरीली नहीं रख सकते. यू हैव टू टेक हिम टू दी एज पर दी प्रोविजन सेक्शन 43 ऑफ CRPC. यू हैव टू टेक हिम टू दी पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर. Now also, what if you arrest any person under an erroneous belief? आपने गलती से किसी को अरेस्ट कर लिया एज अ प्राइवेट मैन, एज अ प्राइवेट पर्सन आपने अरेस्ट कर लिया, आपको ऐसा लगा कि किसी ने ऑफेंस कमिट किया है. फॉर एग्जांपल, अगर पब्लिकली कोई व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को लेके जा रहा है और आप वो बच्ची रो रही है एंड यू आर थिंकिंग दैट शायद वो पर्सन उसको किडनैप कर रहा है या कहीं या कोई ऑफेंस कॉज होने के चांसेस हैं या हो रहा है, वटेवर आपको ऐसा लग रहा है, तो ये तब भी आप अरेस्ट कर सकते हो और आप इम्यून होगे पूरी तरह से अगर ये सर्कमस्टांस सेक्शन 79 की कंडीशंस को में फॉल करता है. सो इट प्रोवाइड्स दैट एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ. It provides that nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake. So आपने mistakenly किसी को arrest कर लिया तो ये यहाँ पर fall कर रहा है. Who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. So आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ऑफेंस कमिट हो रहा है बट एक्चुअली ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा था और बाद में जब आप पुलिस के पास ले जाते हो और बाद में ये पता चलता है कि जो दो लोग लड़ रहे थे उनमें से एक तो सेल्फ डिफेंस जिसको आपने अरेस्ट कर लिया वो तो सेल्फ डिफेंस में किसी से लाइक फाइट कर रहा था या रेसिस्ट कर रहा था, तो ऐसे केसेस में यू आर इम्यून फ्रॉम being prosecuted for any such thing and which is by reason of section 79 of IPC जो हमें प्रोटेक्ट करता है ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि आप गुड फेथ में किसी को अरेस्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं. सो इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ. सो मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट अगेन नॉट like excused here. Here, what can be excused is mistake of fact of anything or the act is justified by law. So, ये circumstance अगर फिट होते हैं किसी केस में तो आप किसी को गलत तरीके से अरेस्ट भी कर लेते हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अरेस्ट कर लेते हो या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है या होने वाला है, यहाँ पे चांसेस हैं. इवन इन केसेस जहाँ पर कोई अटेम्प्ट हो रहा है किसी ऑफेंस का, तो ऐसे केसेस में भी आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो एज पर सेक्शन 43 एंड बाद में पता चलता है कि कोई ऑफेंस का कमीशन हुआ ही नहीं है. कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में किसी से लड़ रहा था या फाइट चल रही थी तो वहाँ पे वो इम्यून है एज पर सेक्शन 79. सो दिस इज़ हाउ अ प्राइवेट पर्सन कैन मेक अरेस्ट ऑफ एनीवन. इन ऑल दीज कंडीशंस देयर मस्ट बी ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज कंडीशंस मस्ट बी रिमेंबर्ड. As you cannot arrest any person in any circumstances, there are certain conditions as per section 43 कि उन conditions को ध्यान में रख के ही किसी को अरेस्ट करा जा सकता है. even if you are not a police officer, as a private person you can make arrest. So these conditions must be remembered and यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो भी, एंड अगर आप किसी को अरेस्ट करके रख लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं और उसको पुलिस के पास नहीं ले जा सकते हैं तो ये अपने आप में एक ऑफेंस हो जाता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.